which increments the value of a variable by default by a value of 1. Okay. So here a plus plus will basically increment the value of a by how much? By the value of 1. ठीक है. अब इसके दो टाइप्स हैं. टाइप्स नहीं बोलूंगा मैं, आई वुड से इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो वेरिएंट्स है. देयर आर टू वेरिएंट्स ऑफ इट. फर्स्ट इज, इसको बोला जाएगा प्री इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इज पोस्ट इंक्रीमेंट. नाउ व्हाट डू बाय प्री एंड पोस्ट? As you can see here, I have written the plus plus sign in front of the variable, and there is another representation where I have written plus plus sign after the variable. ठीक है, एक जगह प्लस प्लस पहले लिखा है, एक जगह प्लस प्लस बाद में लिखा है. So just how we are going to place our increment operator, अगर मैं उसको पहले लगा रहा हूं, so it is written before the variable, तब उसको बोल देंगे हम pre increment. If the placement of plus plus variable is after the variable, हमने इसको बाद में लिखा है, तो मैं उसको बोल दूंगा post increment. ठीक है. And just by writing previous or just by writing after the variable, the effects are not quite the similar. Plus plus means increment by 1, minus minus means decrement by 1. वो सारी चीजें ठीक है. This is increment by the value 1. This is decrement by the value 1. Again, decrement operator के भी same दो variants हैं, pre decrement and post decrement. The way of writing pre decrement is also similar, कि अगर हम माइनस माइनस वेरिएबल के पहले लिख रहे हैं, so that becomes pre decrement. अगर सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस आएगा. ओके, दिस इज b minus minus. Okay, and if suppose I have written b minus minus after the variable, that becomes post decrement. ठीक है. Now we'll see the working. First हम लोग देखेंगे कि how b equals to a plus plus a works. I'm going to write this here, b equals to plus plus a. As in the example, we have taken the value of a as 10 and b as 5. यानी इसके पहले, इसके इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के पहले the value of a is 10, right, and the value of b is 5. So अगर मैं ये एग्जीक्यूट करने के पहले चेक करना चाहूँ what is the value of a and b, so the value would be 10 and 5. Now when this particular statement gets executed, कैसे वर्क करता है? जब आप प्री इंक्रीमेंट लगा रहे हो, यानी प्री वाला, प्री मतलब पहले, जब आप पहले इंक्रीमेंट लगा रहे हो तब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो. इन दिस पर्टिकुलर लाइन हाउ मेनी symbols you can see? There is one which is assignment operator and there is one which is increment operator. इंक्रीमेंट भी कौन सा? प्री इंक्रीमेंट. तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, प्लस प्लस ए या फिर b इक्वल्स टू a? सो जब आप प्री इंक्रीमेंट करते हो, द प्रायोरिटी टेक्स ओवर विद बाय प्री इंक्रीमेंट, यानी प्रायोरिटी किसको जाती है? प्लस प्लस को. इसका मतलब अगर आपने प्लस प्लस ए लिखा है तो वो पहले ये एग्जीक्यूट करेगा. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए बाय 1. सो द वैल्यू ऑफ ए वाज 10, जब इसमें प्लस 1 कर दूंगा, सो द वैल्यू ऑफ ए इज नाउ 11. यानी ये जो पर्टिकुलर पूरा मैंने सर्कल किया है, इस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया? नाउ 11. नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 11. अब जब a इज बीन असाइन्ड टू द वेरिएबल व्हिच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज b. अब जब इसके बाद मुझे b इक्वल्स टू a करना है, सो नाउ द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ a इज 11, सो द वैल्यू 11 इज गिवन टू b. So after the successful execution of b equals to plus plus a, the value of a will also be 11 and b will also be 11. ये समझ में आया क्या? Sir, can you repeat it once again? Sure. This is pre increment, this is post increment. In pre increment कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? Because the plus plus sign is written before the variable. यहां तक ठीक है. अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है that whenever you see pre increment operator, जब आपको pre increment operator दिखता है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा. This pre is written with what variable? a. The value of a is now 10. अब जब 10 को मैंने प्लस प्लस किया, because प्लस प्लस a, that means मैं a को प्लस प्लस कर रहा हूँ. The current value of a is 10. If I'm going to plus plus, if I'm going to increment the value of a by 1, so 10 की जगह उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11. Now after हमने क्या बोला कि प्री में सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है, so now the value of a is 11. ठीक है. So now this 11 of value of 11a will be assigned to value of b. So जब ये एग्जीक्यूट होगा b is equals to plus plus a,
तो पहले ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू हो जाएगी 11, एंड नाउ दिस वैल्यू ऑफ 11 विल बी असाइन टू द वेरिएबल b, सो b इक्वल्स टू 11। तो जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी a प्लस प्लस, सो वैल्यू ऑफ a जो है वो 10 से 11 हो जाएगी। उसके बाद जब ये 11 वाली वैल्यू b को असाइन होगी, तो b की वैल्यू अगर 5 है तो वो भी रिप्लेस होके क्या हो जाएगी 11। सो आउटपुट क्या हो जाएगा, a का भी 11 और b का भी 11। जस्ट हैंग ऑन, अब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं तो डिफरेंस देख के आपको समझ में आएगा। नाउ अगर सेम इक्वेशन है b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, यहां पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब वेरिएबल के बाद लिखा है हमने a प्लस प्लस, प्लस प्लस हमने बाद में लिखा है, इसका मतलब ये पोस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, जब पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी प्लस प्लस को नहीं जाती है, बट प्रायोरिटी जाती है इक्वल्स टू को। इसका मतलब पहले वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी, और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। यहां पर क्या हुआ था, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, बाद में असाइन हुआ, बट इन पोस्ट what is going to happen, first the value will be assigned to variable b. what is the, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला है द वैल्यू ऑफ a is 10 एंड वैल्यू ऑफ b is 5, ठीक है, एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग b इक्वल्स टू a प्लस 10, सो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ a is, current value of a is 10, so the current value of 10 will be first assigned to variable b, so now the value of b is now 10. आफ्टर असाइनमेंट क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी a प्लस प्लस, सो a प्लस प्लस मतलब a का वैल्यू 10 है, वो हो जाएगा 11, सो आफ्टर नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 11, इसका मतलब देखो b का वैल्यू क्या हो गया 10 और a का वैल्यू हो गया 11, सो दिस इज द आउटपुट। अब समझ में आया क्या? Yes, sir. Does anyone have any doubt? बेसिकली अगर आप ये एक्सप्रेशन देखते हो, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन सी टू ऑपरेटर्स, वन इज इक्वल टू, अनदर इज प्लस प्लस। सो पहले कौन सा, जैसे आप लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, राइट? बोर्ड मास रूल किस लिए आया है, जस्ट टू चेक व्हाट ऑपरेशन टेक्स द प्रीसीडेंस ओवर द अदर, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में ओ से अलग ऑपरेटर्स सॉल्व करने हैं, देन डिवीजन आएगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इसका प्रायोरिटी चेक करता है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर मेरे पास दो ऑपरेटर्स है, वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, अनदर इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है, कि पहले असाइन होगा या पहले इंक्रीमेंट होगा, राइट? बिकॉज अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं प्लस प्लस को, सो दिस इज b इक्वल्स टू a, दैट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है। और अगर मैं इक्वल्स टू को अगर सपोज मैं ड्रॉप करता हूं, सो दिस बिकम्स प्लस प्लस ए। तो पहले क्या इंक्रीमेंट होगा या पहले असाइन होगा, ये समझने के लिए ही मुझे समझना है कि प्लस प्लस किस तरीके से लिखा गया है। इफ द प्लस प्लस इज रिटन विथ प्री इंक्रीमेंट, द प्रायोरिटी इज विथ ए प्लस प्लस, और अगर प्लस प्लस अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में लिखा गया है, सो प्रायोरिटी इज विथ असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इन दिस केस क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। सो पहले a प्लस प्लस होगा, सो वैल्यू ऑफ a इज नाउ 11, और जब वैल्यू ऑफ a 11 हो गई और जब a की वैल्यू यहाँ b को असाइन होगी, सो b की वैल्यू भी हो जाएगी 11। बट इन दिस केस पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होगी। नाउ द करंट वैल्यू ऑफ a इज 10, सो द वैल्यू 10 इज असाइन टू b, सो b की वैल्यू पहले असाइन होगी 10, और वो होने के बाद a प्लस प्लस होगा, सो द वैल्यू ऑफ a इज 10, इंक्रीमेंट होने से वैल्यू हो जाएगी 11। इसीलिए इसका आउटपुट a प्लस इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 10 है, और इसका आउटपुट a इक्वल्स टू 11 एंड b इक्वल्स टू 11 है। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। Now, in a similar manner, we have to see decrement, which is pre-increment and post-increment. Sorry, decrement operator, which is again in pre-decrement and post-decrement. It works in a similar manner. For example, if this is the case, a equals to minus minus b. So, minus minus is written with pre-decrement manner. That means the priority will be given to the decrement value first. पहले decrement होगा, बाद में assign होगा, ठीक है? So, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a equals to minus minus b. What is the current value of b? 5. What's the current value of a? 10. a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 5. सो जब ये वैल्यू को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सो माइनस माइनस प्री में लिखा गया है, इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। तो जब मैं पहले डिक्रीमेंट करूंगा, डिक्रीमेंट किसको करना है, वैल्यू ऑफ b, सो माइनस माइनस b, दैट मींस द वैल्यू ऑफ b इज नाउ चेंज टू 5, ठीक है? सॉरी, वैल्यू ऑफ b इज चेंज टू 4, उसके बाद असाइन होगा, सो द वैल्यू ऑफ a इज नाउ गिवन एज 4। ये ऐसा होगा, ये नहीं होगा, इनकरेक्ट है, a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है?
बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग ना, तो इसलिए ये सारे जो एरर्स दिख रहे हैं आपको कि यहाँ बी माइनस माइनस और ये आउटपुट, इसलिए थोड़े इनकंसिस्टेंट है, सो इग्नोर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, राइट। और अगेन सेम अगर मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू b माइनस माइनस सेमीकोलन, अगर मैं ये एक्सप्रेशन की बात अगर करता हूँ, सो अगेन द स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 10 एंड 5 फॉर एग्जाम्पल। और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस बाद में लिखा है, मतलब ये पोस्ट है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले असाइन होगा बाद में डिक्रीमेंट होगा। सो व्हाट आर वी असाइनिंग, वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ b टू a, वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ b टू a, तो b की वैल्यू 5 a को असाइन हो गई, एंड उसके बाद b माइनस माइनस होगा। सो b माइनस माइनस मतलब नाउ द वैल्यू ऑफ 4 विल बी, sorry, value of 5 will be 4, so the value of a will be now 5 and value of b will be now 4. previous case में देखो दोनों डिक्रीमेंट हो गई थी, but in this case value of a will be 5 and b will be 4. Does anyone have any doubt, confusion हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो बताओ। देखो this is slightly tricky topic. Does anyone have any doubt? I hope not. क्या हो गया, BW बहुत ज्यादा पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? Okay. So I'm assuming that there are no queries. इसका मतलब कोई शायद डाउट नहीं होगा. And I'm glad, that means आपको समझ गया है. Anyways, so without wasting much of your time, I'm just heading towards the last operator in C, which is conditional operator. ठीक है? This particular operator of conditional is also called as ternary operator. ठीक है? Ternary operator and conditional operator, ये दो इसके अलग-अलग नाम हैं. Now the symbol for these operator are question mark and colon. आपको दिख रहा होगा question mark and colon. ठीक है? What is the syntax? Give me a minute. Right. So the syntax of writing conditional operator are this. ये उसका syntax है, as you can see. अगर मैं इसको यहाँ पर बड़े तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट है. उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन नंबर 1, ओके, एंड देन कोलन लिखा है, और उसके बाद है एक्सप्रेशन नंबर 2, इसके बाद आएगा सेमीकोलन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. सो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि आपने पढ़ा है इफ एल्स. इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है कि इफ में अगर आप जो कंडीशन लिखते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट. अगर कंडीशन ट्रू होती है देन इफ ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. सो ये सिमिलर है. द टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू, तो फर्स्ट के ट्रू होने के बाद जो सेकेंड पोर्शन है विच इज एक्सप्रेशन नंबर 1, ये एग्जीक्यूट होगा और ये ड्रॉप हो जाएगा. दिस विल गेट इग्नोर्ड. इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन the third portion will be executed and the second portion will be ignored. समझ में आ रहा है? यानी basically this is if and else only. This particular topic is exactly similar to if and else only. if else में क्या होता था, अगर if की कंडीशन आपकी true है तो आपका if ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपका else ब्लॉक एग्जीक्यूट जब होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी. सो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं मेरे if ब्लॉक की तरह, इसको कंसीडर कर सकता हूं मेरे else ब्लॉक की तरह. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन और द कंडीशन जो यहाँ पे चेक कर रहा हूं, इफ दिस कंडीशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू then my if block will be executed and else block will be ignored. So if block कौन सा है? The second portion. Second portion मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? जो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में लिखा गया है. This is my second portion. So if the text condition is true, the portion which is written between question mark and colon will be executed, and the third portion which is after the colon will be ignored.
But if my condition is exactly equals to false, then the portion written after the colon, that is the third part, will be executed, and the portion which is written between question mark and colon, that is the second part, will be ignored. ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज a ग्रेटर देन 5. ये एक कंडीशन लिखी गई है, क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है. What we have considered the value of 5, sorry, value of a has been considered exactly equals to, sorry, value of a is considered as 10. So अगर मैं ये कंडीशन लिखता हूँ a greater than 5, that means the value of a is 10. So 10 greater than 5. So this condition is true. So जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या हो गया, कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, 125. 125 has been assigned to what variable, r. इसका मतलब जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन, द वैल्यू ऑफ r is exactly equals to 125. r is assigned the value 125. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a की वैल्यू को 1 कंसिडर करता, सो क्या होता, 1 ग्रेटर देन 5 ट्रू होता, क्या फॉल्स होता. सो इफ सपोज इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो जो पोर्शन है थर्ड पोर्शन, ये वाली वैल्यू विल बी असाइंड टू, वुड हैव बीन असाइंड टू r. तो in the another case when the condition is false, the value of r would have been 100. ये क्लियर है क्या? तुम लोगों को सी बोर हो रहा है क्या आजकल? नो सर. नो सर. क्या है फिर, क्या दिक्कत है? ये क्लियर है क्या? यस सर. चलो, anyways, so we have completed all the operators and without wasting any time, हम लोग quickly इसके programs जो है वो execute कर लेते हैं. And just to save time, meanwhile मैंने सारे प्रोग्राम को कोड करके रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. If anybody will have any problem, meanwhile हम लोग देख लेते हैं, or else after the execution of this program हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर. 3 देखने हैं, बिटवाइज का प्रोग्राम नहीं हुआ था. Okay, so what I have done here is I have included 2 header files. Then I have एक second. Yeah, I have included 2 header files, stdir.h and conio.h. Inside the void main, I have declared 3 variables. One is x, which is equals to 12. Another is y equals to 1, and another is z, that is the third variable जिसमें मैं result store करने वाला हूँ. ठीक है. Then as per our old ritual, we are clearing up the screen after defining the variables. Then this is just a decoration part कि मैंने यहाँ पे एक printf line declare किया है, which will just print a heading of bitwise operator because we are demonstrating the bitwise operator. And now मैंने थर्ड वेरिएबल z वहां पे जरूर डिक्लेयर किया, बट यू कैन सी मैंने यूज ही नहीं किया है. लेट मी जस्ट डिलीट दिस. ओके, व्हाट आई हैव डन, कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट इज आवर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. सो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का मैंने ऐसे एक प्रिंट कर दिया है हेडिंग, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, और मैंने x को कॉम्प्लीमेंट कर दिया है. सो एज वी ऑलरेडी नो, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज बीन आइडेंटिफाइड बाय द सिंबल टिल्ड, जो आपको इस पे एस्केप की के नीचे मिलता है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x विल बी प्रिंटेड हियर. देन नेक्स्ट लाइन में हमने बिटवाइज एंड करने के लिए x एंड i कर लिया है. देन बिटवाइज और के लिए डायरेक्टली आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू x और y. यहाँ पर पाइप यूज किया हुआ है. नेक्स्ट इज बिटवाइज और, here we have used the caret symbol, that is x to the power y. आपको आदत होगी, but this is not power, this is caret. Okay, and then shift left, यहाँ पे क्या किया है, x को 1 bit से left shift किया है, here y को हमने 2 places से shift किया है. ठीक है, अगर इसको आपको execution देखना होगा, so this I have completely there are no errors and no warnings, and this is the output. ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है ऑलरेडी. Now we'll go to the increment and decrement program. What I have done here is, again, I have declared 2 header files. Then I have started the void main. Void main start करने के बाद क्या किया हुआ है, void main के बाद I have declared 3 variables. One is a, another is b, another is c. a को 10 दे दिया, b को 5 दे दिया, and c is the third variable where we are going to store the output. Now again, this is here SCR, the basic ritual of clearing up the screen.
ये मैंने एक ऐसे ही लाइन लिखा हुआ है कि बिफोर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग द वैल्यूज आई नीड टू नो द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो एक लाइन मैंने प्रिंट कर दी कि बाबा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या है बिफोर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग देम, सो आई कैन चेक इन कंपैरिजन की क्या वैल्यू बढ़ी और क्या वैल्यू डिक्रीज हुई। सो दिस लाइन विल प्रिंट द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एस 10 एंड बी एस 5। देन दिस इज अगेन अ डेकोरेशन पार्ट दैट आई हैव रिटन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करके एक हेडिंग आएगी, उसके नीचे वी हैव habit of underlining। हम लोग हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं, तो just because I had enough time with me today in the morning, so I just decorated this with another print line जिसमें equals to sign को मैंने ऐसे अरेंज किया है कि it will look like a underline to increment operator। This is just decoration part। The very first equation is c equals to plus plus a, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। c equals to plus plus a means कि हमने पहले क्या किया है, a को पहले वो इंक्रीमेंट करेगा और बाद में c में असाइन करेगा। सो अगेन यहाँ पर जिस हिसाब से मुझे आउटपुट चाहिए था वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज कि बाबा एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर दो, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए a प्लस प्लस कर दिया हमने, फिर c को असाइन किया। एंड सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी c इक्वल्स टू माइनस माइनस b एंड c इक्वल्स टू b माइनस माइनस ये किया है, गेट ch किया है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट रन द प्रोग्राम। So here you can see the value of a is 10, value of b is 5। जब मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में c इक्वल्स टू प्लस प्लस a कर रहा हूं, यानी पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगी। a की वैल्यू 10 थी, the value got incremented by 1, so the current value of a now will be 11। वो 11 किसको असाइन होगी बाद में, c। so after c equals to plus plus a, both the value of a and b will be 11 11। यहां तक ठीक है। उसके बाद विद द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 11 एंड विद द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 11 हम c इक्वल्स टू a प्लस प्लस फिर से असाइन कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, सेकंड केस में पहले a की वैल्यू c को असाइन हो जाएगी, तो a की करंट वैल्यू 11 है, सो c इक्वल्स टू 11 हो जाएगी। और उसके बाद a प्लस प्लस होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, सो वैल्यू ऑफ a नाउ विल बी इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 11 टू 12। सेकेंड पोर्शन डिक्रीमेंट ऑपरेटर c इक्वल्स टू माइनस माइनस b, पहले b माइनस माइनस होगा फिर असाइन होगा। सो पहले b का वैल्यू 5 से 4 होगा और वो 4 वैल्यू c को असाइन होगी। सो बोथ द वैल्यू ऑफ c एंड b आर 4 and 4। and last c equals to b minus minus, where we have demonstrated post decrement where the precedence or priority is taken by the assignment operator। तो पहले b equals to c होगा, यानी कि b की जो वैल्यू थी 4 वो c को असाइन हो जाएगी। so the value of c is now 4 and then b minus minus होगा, so the value of 4 was 4, सॉरी वैल्यू ऑफ b was 4, so b माइनस माइनस मतलब b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये आउटपुट समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट इज कंडीशनल। यहां पर मैंने क्या किया है, कंडीशनल ऑपरेटर को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन नो द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देखोगे कि दिस इज अ कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स जिसको हमने इक्वल टू से एक वेरिएबल में असाइन किया है। तो दिस इज वन वे। अनदर वे है कि इसको नहीं भी यूज करना है अगर, तो मैं यहाँ पर कुछ अपने अलग लॉजिक्स लिख सकता हूँ इन द सेकेंड पोर्शन एंड द थर्ड पोर्शन। सो मैंने ये सेकेंड वे को भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। विल सी हाउ। So here you can see I have declared one variable integer n, another variable character variable r। r identifies result for me, इसलिए मैंने r लिया है। Next is clr scr, this is a ritual of clearing up the screen। Next is printf, enter a number। I am asking a number from the user और वो कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल n में। How to store the variable value in variable n by using scanf। I guess this is self explanatory, ये आपको पता ही है अभी तक। And then this is my exact conditional operator। This is my exact conditional operator line। क्या किया है मैंने, पहले कंडीशन लिखी है कि क्या n greater than 0 है। अगर n greater than 0 है तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर है तो मैं क्या कर रहा हूं, I am printing
positive. That means I am printing on the screen that the value that user has entered is positive number. ठीक है, अगर suppose the value of n is not greater than 0 तो क्या print होगा? Negative. So this is conditional operator. If the value is true, second portion will be executed, third portion will be ignored. How to identify first, second and third portion? The first portion जहाँ पे हम लोग text expression लिखते हैं is been identified with the help of the portion before question mark. Second portion is identified the portion between question mark and colon, and third portion is identified by a portion after colon till the semicolon. ठीक है, सो अगर मैं इसको चेक करता हूं पहला पर्टिकुलर पोर्शन और अगर मैंने पॉजिटिव नंबर एंटर किया सो द आउटपुट विल बी पॉजिटिव. इफ आई वुड एंटर अ नेगेटिव नंबर द आउटपुट वुड बी नेगेटिव नंबर. देन मैंने गेट सीएच सिर्फ इसलिए लिखा है सो दैट मैंने दो केसेस लिए हैं तो यहाँ पे बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा. दो एक यू नो यू वुड गेट अ ब्रेक बिटवीन टू आउटपुट्स. वो कैसे होगा देखते हैं. देन अगेन ये डेकोरेशन पार्ट है कि मैंने एक अंडरलाइन टाइप का display कराया है so that I can differentiate between case 1 and case 2. And then in case 2 also again I have asked for another number. Now in this case अगर यहाँ पे मैं check कर रहा हूँ whether the number is divisible by 5 or not, and what's the condition? Condition is the value of n is divisible by 5 कब होगा? अगर उसका remainder exactly equals to 0 है. अगर n modulo 5 is exactly equals to 0 is true, then क्या हो रहा है सेकेंड पोर्शन में? कैपिटल y कहां पे स्टोर हो जा रहा है? इन द वैल्यू ऑफ r. नाउ r इज अ वेरिएबल, r इज अ वेरिएबल विच इज अ कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर r. इसका मतलब अगर मेरा नंबर n डिविजिबल बाय 0 हो रहा है सो r की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल y, अ वन कैरेक्टर. इफ द वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 5 दैट मींस first portion test condition is false, then value n is been given to the variable result r. Now what identify y and n? कि yes divisible by 5 and n identifies no it is not divisible by 5. And after that मैं एक लाइन यहाँ पर मैंने just print करी है कि whether the number entered is divisible by 5 or not question mark slash n new line. आपको लिख के आएगा आंसर इज %c और वैल्यू होगी r की. %c क्यों? बिकॉज द वेरिएबल इज r and r is a character variable. कैरेक्टर वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c. अब इसका आउटपुट देख लेते हैं. Now it is asking for a number. For example, I am entering a negative number -100. देखो आपको आउटपुट आया नेगेटिव. दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर हमने क्वेश्चन मार्क और कोलन में ही printf को यूज किया है विदाउट असाइनिंग द वैल्यू टू एनी थर्ड वेरिएबल. Second portion, enter another number. This is the portion where we are going to check whether the number is divisible by 5 or not. For example, I am giving a number which is divisible by 5. So इसका आउटपुट देखो क्या आया है? The answer is y. That means this particular y has been assigned to the character ch, the character variable r result, और तब वो डिस्प्ले हुआ. ठीक है, हम लोग इसको और एक बार प्रिंट करते हैं जहां पर मैं एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं. सो द आउटपुट इज पॉजिटिव. एंड अनदर केस कि हम एक ऐसा नंबर लेंगे which is not divisible by 5. So the answer is no for n. ये क्लियर है? Yes, sir. Okay, so I guess we have completely covered all the variables, sorry, all the operators in C now. And just a minute. Okay, so हमारा operators in C complete हो गया है. That means second unit completely cover हो गया है. First unit is completed, second unit is completed. Third unit में से हमने if else, nested if else वो already cover किया है. So we are already in third unit. और you must have heard about your MSc exam अभी आ रहा है, MCQs वगैरह कुछ 20 मार्क्स का आप लोगों को लेना है. So I'll stick to the first 2 units. और उसके जो नोट्स है वो आप लोगों को बस मिल जाएंगे मोस्टली बाय टुडे और बाय टुमारो यू विल गेट द नोट्स. और MCQ भी बहुत सिंपल होने वाले हैं. ठीक है, इतना कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज इफ यू नो द बेसिक टॉपिक्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास तो भी आप लोगों का MCQs हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट द अटेंडेंस भी मैंने ले ली है. अगर किसी का छूट गया हो तो मुझे बता सकते हैं, बट आई गेस आई हैव टेकन द अटेंडेंस. देख लो एक बार कितने लोगों का अटेंडेंस है. एक दिव्या निखाड़े इज प्रेजेंट, श्रेया इज प्रेजेंट, एंड शांतनु, हिमांशु, राजश्री, अजिंक्य, हर्षल, ऋषभ,
Rajendra is present. Sorry. That is Shreyas is present. Vaibhav is Sir, present. What's your roll number? 1. Roll number 1. Ayush, okay, you joined later, I guess. ठीक है. Then Harshal, Rishabh and Shreyas हो गया था. वैभव हो गया है. ऋषभ, देवांग. I guess Vedant is the name. Devang is the name. Abhishek, Hemant, and one more guy. Nageshwar, I guess the name, and Uddesh. कोई छूट गया है? किसी का नाम नहीं आया है? ऐसा कोई है? सर मैं कल भी प्रेजेंट था ना. 54 सर. What's your roll number? 54. 54. Your name is Nageshwar, right? यस सर. हाँ, चलो ठीक है. So I guess सबका अटेंडेंस भी हो गया है और क्लास भी हो गई है. So I'm just going to hang up now. And